Baluchistan is the largest, in terms of area, but least developed of Pakistan's 4 provinces. While extending over 347,000 square kilometers, 44% of the total area of the country, it has an estimated population of 11 million, or only about 5% of the national total. The economy of Baluchistan is still at an early stage of development, characterized as agro-based. In spite of this, Baluchistan is not self-sufficient in most food crops due to underdevelopment of agricultural infrastructure and insufficient supply of irrigation water. Baluchistan has 2 types of irrigation systems, that is Indus gravity-fed canal system that irrigates 230,000 hectares and small-scale irrigation covering about 320,000 hectares annually. Nasirabad Division is the only division in Balochistan that is irrigated through the river waters that reach Balochistan from Kirthar and Patfeeder canals under the Water Apportionment Accord signed on March 21, 1991. The said accord was signed in the wake of interprovincial disputes, which date back to the British era, over water distribution mechanism from Indus Basin water system. In irrigation canal system of Balochistan, 2 major canals, Kirthar Canal and Patfeeder Canal, plays pivotal role, whereas Kachi Canal is underway to make this number to 3. Work began on Sukur Barrage in July 1923, and shortly after the first civil works were put in place in the turbid waters of the Indus, excavation of its 7 canals was taken in hand. Along the right bank, the Rice and Dadu canals, close to each other and only a short way west of the Indus, were designed to flow in a southerly direction. The 3rd canal on this side was the northwestern that we today know as Kirthar Canal. It took off from the barrage and flowed, as its name implies, on a northwesterly bearing through Shikarpur and into what now comprises the districts of Jafarabad and Nasirabad in Balochistan. The Patfeeder Canal is a branch of Desert Patfeeder Canal, which off-takes from right bank of Indus River at Gudu Barrage. Water from this canal is used for agricultural purposes in Balochistan province. This canal was constructed between 1963 and 1969 by WAPDE and started operation in 1970. The last remodeling of Patfeeder Canal was completed in 1997 to 98 to increase its capacity by nearly 100 cubic meters, the total length of canal is 171 mil and has a present design discharge of nearly 190 cubic meters per s. The newly built Kechi Canal has not reached its tail yet. The project was envisaged in 2002 with a cost of 31.204 billion, with a canal capacity of 6,000 cusecs, and was due to complete in June 2008. However, 18 years on, only Phase 1 of the project has seen the light of the day, which was completed in September 2017. The completed phase irrigates 72,000 acres of land in district Dera Bugti and is also marred by the flood onslaught of 2022. Phase 2, which is set to irrigate 216,000 acres Bolan and Nasirabad, and Phase 3, which will irrigate 344,000 acres of land in district Bolan, Nasirabad and Jalmagsi, still await completion or even consideration thereof. बलूचिस्तान में जो कैनाल सिस्टम है उसमें 2 मेजर कैनाल्स बलूचिस्तान में आते हैं। एक है कीर्थर जो कि पाकिस्तान बनने से पहले सक्कर बैराज से वो ऑफटेक करता है, तो जाफराबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको इरिगेट कर रहे हैं। फिर दूसरा गुड्डू बैराज जब बना उसके साथ ही फिर ये पटफीडर
जो कैनाल है उससे निकाला गया। तो वो डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, जलमक्सी और सोबतपुर का कुछ एरिया है, उसमें ये इरीगेट कर रहा है। तो मेजर 2 कैनाल है हमारे। और इसके साथ अब कच्ची कैनाल जो है, कच्ची कैनाल जो कि तोंसा बैराज से उसको वो लेके आ रहे हैं, जो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है पंजाब के एरिया में। उसके बाद फिर ये एंटर होता है डेरा बुगटी में। तो 1 लाख के करीब, 1 लाख एकड़ के करीब वो डेरा बुगटी में सैराब करेगा। इसके बाद फिर नसीराबाद और अल्टीमेटली बोलान और कच्ची का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारे मिला के कोई 7,13,000 एकड़ ज़मीन उससे ज़ेर आब होगा। तो ये कैनाल का सिस्टम है। वो चूँकि इस वक्त हम डेरा बुगटी में, कच्ची कैनाल में, डेरा बुगटी में तो हम आ चुके हैं और कोई 70,000 एकड़ के करीब वो ज़ेर काश थे इलाका। लेकिन थोड़ा सा पिछले साल जो 22 के एबनॉर्मल फ्लड्स हुए थे, जिसमें कोई सुलेमान के जो हिल टॉरेंट्स थे, रोद कोई जिनको कहते हैं, उसकी वजह से वो डैमेज हुआ है। तो स्टिल वो पानी जो है वो सस्पेंड है। तो पिछले साल वो आबादी नहीं हो सकी। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि पट फीडर में भी इसी तरह के सीरियस डैमेजेस लगे थे, लेकिन विदिन 25 डेज़ इरिगेशन ने उसको उनको रिस्टोर कर दिया और अपने सिस्टम को। और पिछले जो साल रबी का जो क्रॉप था वो बम्पर क्रॉप आया था वीट का। तो ये 3 कैनाल हैं बेसिकली जो इरिगेशन जो सिस्टम है हमारा चल रहा है। उसमें मसला एक और भी है कि जो 1991 का एक कार्ड है, वाटर रिकॉर्ड, जो तमाम सूबों के ने मिल के उस पर दस्तखत किए और तमाम के कंसेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। तो उसमें हमारा जो शेयर होता है 3.87 मिलियन एकड़ फीट। तो 3.87 मिलियन एकड़ फीट से इस वक्त जो हमें पानी मिल रहा है वो तकरीबन कोई 3 मिलियन एकड़ फीट, और 0.87 हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कैनाल्स की वो इतना ही कर पा रहे हैं। तो जब ये कच्ची कैनाल जब इंशाल्लाह कमांड करेगा पूरा एरिया, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपना जो ड्यू शेयर है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। ये देखा जाए तो मतलब ये कोई आसान प्रोजेक्ट है भी नहीं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बड़ा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। एक तो ये है कि इसकी जो लेंथ बन रही है 300 किलोमीटर तक उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ पंजाब से ही ट्रेवल कर रहा है। और फर्स्ट डिफेंस लाइन है, जितने जो हिल टर्न से, हिल के टो से गुजर रहा है, ये जो कोई सलेमान का जो रेंज है उसके तो फर्स्ट जो हिट वहीं से इस कैनाल को होता है। इसके बाद फिर डीजी खान का जो कैनाल है उस पर मतलब उसको हिट करता है। तो मसाइल उसके हैं कि क्रॉस ड्रेनेज का एक मसला है। जो क्रॉस ड्रेनेज शुरू में जो उन्होंने एस्टिमेशन की थी कैनाल की सिंपल, तो उसमें ये चीज़ों की कमी थी कि जो बारिश का या बरसाती जो नाले हैं उनको हमने किस तरह इसको क्रॉस करना है और इसको महफूज भी रखना है बारिशों के दिनों में और बरसात के दिनों में। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें वो रिवाइज होता गया 2 मरतबा 3 मरतबा। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो दाखिल हुआ है, बलूचिस्तान में थोड़े बहुत नुकसानात हुए थे, लेकिन जो मेजर नुकसानात हैं वो पंजाब में हुए हैं। तो बाकी जो जलमक्सी और नसीराबाद में जब आ रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे बरसाती नाले उसने क्रॉस करने हैं। तो यहाँ पे जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी बना रहे हैं तो इससे मिटिगेट होगा जो उसका जो डैमेजेस हैं किसी हद तक शायद वो कवर हो जाएं। जिसमें बोलान डैम बन रहा है, नोलांग डैम बन रहा है और लेडी पे फ्लड इरिगेशन स्कीम्स के कुछ इंटरवेंशंस हैं। देखें हमारे तो अनलाइंड कैनाल हैं। अनलाइंड कैनाल मतलब वो पक्के कैनाल नहीं है। तो उसमें जो दरिया का पानी होता है उसी तरह उसमें वो फ्लो होता है कैनाल में। तो उसके साथ एक अच्छा खासा सिल्ट उसके साथ आता है। तो उसके मुताबिक वो सिल्ट उसमें आता है। तो सिल्ट की पीरियडिक एक मेंटेनेंस होती है। सिस्टम को कुछ अरसे के लिए रोक लेते हैं ताकि उसकी प्रॉपर डिसिल्टेशन हो। कैनाल के जो जहाँ कहीं पे भी कोई छोटे मोटे रिपेयर हैं, रेगुलेटर जो गेट्स लगे हुए हैं उनकी लुब्रिकेशन हो। और ये 1 महीने का उसमें आप टाइम रखते हैं, ये मेंटेनेंस पीरियड उसका होता है। तो ये एक ह्यूज सिस्टम है आपकी तीनों बैराज से जो निकलती है।
और इसकी कमांड आपके नियरली अबाउट ये 7-8 लाख एकड़ जो है इस सिस्टम के अंदर ये आबाद होती है उसकी, और ज़्यादा मैक्सिमम हमारी राइस होती है यहाँ। ये सिस्टम आपका पहले जो शुरू सिस्टम था 1200 क्यूसेक के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था, जो वहाँ से पानी लेते थे हम लोग। ये 1986 में रीएविटेट हुआ, और जो 2400 क्यूसेक हमारी शेयर 1991 के बाद जो बनी, इस साल से जो हमारे सारे जो डिस्चार्जेज है वो अलोकेट हुए, तो इस हिसाब से 1986 में बनी। लेकिन इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके रेगुलर से वो 1932 के बने, तो ज़ाहिर बात है इनकी रिहेबिटेशन की बहुत ज़रूरत है, जो अभी रिहेबिटेट हों। और ये आपके रेगुलेटर गेट से रिसेंटली हमारे 2022 के फ्लड के अंदर ये हमारे रेगुलेटर्स को वॉश आउट हुए थे, तो एमरजेंसी में हम लोगों ने उनको जितना काम कर सकते थे, तो क्योंकि फ़ंडिंग का इशू मेन है, फ़ंडिंग का इशू जितना फ़ंड होगा तो ये काम सारे आपके और कंप्लीट भी हो सकेंगे और स्मूथली ये सारी चीज़ें। एक पुराना सिस्टम है, पुराने सिस्टम के लिए हर साल उसकी रिहेबिटेशन की आपके, एक तो हमारी O&M है, O&M से इतनी कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि ये उस वक्त इसकी 1 करोड़ O&M थी। मेरे ख्याल में अभी इसकी O&M है 70 लाख रुपए, बजाय इसके कि इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन रिड्यूस हुआ। तो उसके अंदर आप सारे सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें यह है कि आपका कोई गेट अगर डिसमेंटल होता है या टूट जाती है, या आपका कोई पियर टूट जाती है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। M&R मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है। कि हमारी एक अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमारी वो हुई है, जो पटफीटर कैनाल सिस्टम रिहेबिटेशन के लिए, जो 8560 क्यूसेक के लिए उन्होंने रीडिज़ाइन कर रहे और लाइनिंग कर रहे हैं उसके। कुछ हमारे पेचेज़ हैं जहाँ पे अभी वाटर लॉग एरियाज़ है, जैसे आप उच्च है, माजूटी कैनाल है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 लाख एकड़ है जो आबाद नहीं होती है, बहुत कम आबादी होती है वाटर लॉग की वजह से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये सारे एफ़र्ट्स वो किए हैं। अभी 64 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अभी मेरे ख्याल में इसी प्रोसेसिंग में है, टेंडरिंग प्रोसेस में है। इसके लॉन्च होने से ये है कि वो जो 1 लाख एकड़ ज़मीन है वो सारी आपकी आबाद हो जाएगी, और वाटर लॉग एरियाज़ है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लाइन होने से ये है कि सीपेज लॉसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट बहुत इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट होगा। बाकी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं या यहाँ इतने इसके वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो फ्लड डैमेजेस हुए हैं, कुछ उन्होंने फ्लड डैमेजेस के लिए रखा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। हमारे एक बलूचिस्तान इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स का एक प्रोजेक्ट है, शायद उसमें अभी फ़ेज़ 2 के अंदर जो उन्होंने अनाउंस किया उसको, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट रखी है, जिसके अंदर जितने हमारे फ्लड डैमेजेस हो जाते हैं, फ्लड डैमेजेस को कवर करने के लिए डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स हैं, और पानी को पीछे सारे डिस्पर्स करके उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन कर जो आपके पानी आके पहुंच जाता है वो एक्चुअली हमें डैमेज करता है, तो उसको पीछे डिस्पर्स कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए हुए हैं, नाड़ी के ऊपर भी है, लाड़ी के ऊपर भी हैं, और ऐसे ही आपके नौलंग डैम है, उससे भी ये है पानी आपका रुक जाएगा। जितने ये यहाँ 7-8 लाख क्यूसेक 2022 में 5-6 लाख क्यूसेक यहाँ से क्रॉस हुआ, वो सारे डैमेज करता हुआ पटफीटर कैनाल सिस्टम को डैमेज किया, खीरथर को किया, उससे जाके सिंध को किया। तो हमारी ये फ्लड मैनेजमेंट प्लान की भी उनके साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कस हो रही थी, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर एक मेगा एक प्रोजेक्ट आ जाता है आपके फ्लड मैनेजमेंट प्लान के हवाले से, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों कवर हो जाए, क्योंकि ये सारा पानी जितना भी है वो सारे सिंध में जाए, और सिंध के आपके जितने भी आपके वो पॉन्ड्स हैं, एक आपका हमल लेक है, हमल लेक भी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जो सारे पानी को रोक सके। फिर उसके बाद मंशर झील है, मंशर झील आपको 2022 में आपने देखा जितनी भी थी वो सारे डैमेज हुआ, और जितने भी शहर थे उसके सिंध के भी डूब गए, और हमारे शहर भी डूबे। लेकिन इसके लिए एक प्रोग्राम है जिसकी हमारे 3-4 मीटिंग्स हुए हैं। खुर्शीद शाह साहब थे, उसके साथ हम लोगों ने ये सारी मीटिंग की है कि इसको सारे मैनेज करके हम चला सकें। तो इसके ऊपर सारे जितने बेसन हैं आपके, नाड़ी बेसन जिसको हम कहते हैं, नाड़ी बेसन के ऊपर सारी एक स्टडी हो रही है। इंशाल्लाह वो जो ही स्टडी हो जाएगी उस पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी पानी है पीछे, उसको वहाँ डिस्पर्स करके जितना पानी थोड़ा बहुत बच जाता है उसको हम यूटिलाइज कर सकें। ये हमारा उसके साथ चल हमारी जो खीरथर कैनाल है, ये बेसिकली हमारा जो सक्खर बैराज है, सक्खर बैराज के राइट बैंक से निकलती है। असल में वो NWC से कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कैनाल। तो उसके फर्दर आके हमारा पॉइंट आता है एक KBH, खीरथर ब्रांच हेड, वहाँ से फर्दर फिर खीरथर निकलती है, जिसका 102 RD तक पोर्शन जो है वो हमारे सिंध का है,
फिर उससे आगे जो है फर्दर टिल आपका 278 तक 278 जो हमारे आगे नज़र आ रहा है, वहाँ तक ये अपना हमारा बलूचिस्तान का पोर्शन है 278 तक। मतलब 102 से लेकर 278 जो पोर्शन है वो हमारे बलूचिस्तान के उसमें आता है। और ये कैनाल जो है बैराज का काम स्टार्ट हुआ था 1929 में, और ये 1932 में जाके इनका काम कंप्लीट हुआ था अपना खिस्तर कैनाल का। तो खिस्तर कैनाल सर बेसिकली जो है ये इसमें जो हमारा जिसको कहते हैं ऑथोराइज शेयर जो है, और जो इर्सा की तरफ से जो हमें दिया गया है ऑथोराइज शेयर, हम उनके जो एक्ट है उनके तहत 2400 क्यूसेक है। पे कैनाल के लेफ़्ट साइड पे जो है वो अंदरून है, और ये जो हमारे राइट साइड पे ये बैरून है। और अंदरून में जो है बेसिकली ज़्यादा आबादी होती है, या ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कल्टीवेशन होती है, जो जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि खरीफ की फसलात होती है। खरीफ की फसलात से मुराद ज़्यादातर यहाँ पे जो करते हैं वो राइस ही करते हैं, चावल करते हैं। और उनका जो है 1 लाख, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया, 1,86,000 वो कमांड एरिया है। और बैरून का जो है हमारा 86,000 सिर्फ है रबी का, जिसे कहते हैं। गंदम है, अप्रैल में वो कुछ और फसलात भी कर लेते हैं। खरीफ सीज़न में हमारे पास 6,700 क्यूसेक डिस्चार्ज होता है पानी का, और रबी सीज़न के लिए 3,000 क्यूसेक्स होते हैं। जो 6,700 क्यूसेक माशाल्लाह हम लोग इस साल कैरी किया है अपना, और तमाम आबादी वगैरह जो चावल का जो सीज़न होता है हमारे खरीफ में, वो बाकायदगी से 80 से 85% तमाम ज़मीनों को आबाद किया है। तक 7.5 लाख कमांड एरिया है टोटल, जी टोटल है। उसमें से 25% जो है हम लोग शाली करते हैं खरीफ सीज़न के लिए, और 25% खुश्क फसलात होते हैं जो इधर के ज़मींदार नहीं करते हैं। वो टोटल खरीफ सीज़न का सारे चावल के फसल पे ही इन्हिसार होते हैं। वो 80 से 85% हम लोग इसमें आबादी कर चुके हैं इस टाइम। फ्लड से अक्सर हमारे अपर रीच जो 238, 342 में ख़ासतौर डेरा बुगटी और सुई से जो पानी आता है सैलाबी रेलें, वो ही हमारे पट फीटर को ज़्यादा नुकसान देते हैं। और दूसरे हमारे ये 76 एरिया से पानी आता है, वो हमारे रबी कैनाल से को हिट करता है, और वहाँ से हिट करके पट फीटर को हिट करता है। If Kachi Canal is completed, the agriculture will see a boom in these barren lands, resulting in boost to economy, improvements in physical environment, including atmosphere, climate, water, and definitely improvement in quality of life, resulting in betterment in socio-cultural and socio-economic conditions of the general masses.